حضرات، سامعین حضرات، ڈیئر آڈینس، یہ شجرہ نسب نامہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کے آج تک پیڑھی در پیڑھی پیغمبر، صحابی، خلفائے راشدین، بزرگان دین کا 10 سال میں مرتب کیا ہے۔ اس حقیر ناچیز کا نام نظام القادری کم سخن بدایون۔ ہم نے آپ کی خدمت میں پہلا پارٹ، پہلی کڑی شجرہ نسب نامے کی، اس کا شجرے کا پورا تعارف، پورا انٹروڈکشن دیا ہے۔ دوسرے پارٹ میں پیدائش نوح محمدی صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر دعا قبول حضرت آدم علیہ السلام تک۔ تیسرے پارٹ میں حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر کے حضرت ہود علیہ السلام تک۔ چوتھے پارٹ میں حضرت ہود علیہ السلام سے لے کر کے حضرت لوط علیہ السلام تک کا واقعہ پیش کیا ہے۔ اب یہ 5واں پارٹ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ اس میں دکھایا گیا ہے کہ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پر خداوند قدوس کا عذاب نازل ہوا، اور اللہ تعالیٰ نے کس طرح قوم لوط کے لیے ہلاک کیا۔ تو یہ 5واں پارٹ اس شجرہ نسب نامے کی کڑی ہے۔ تو حضرت ہود علیہ السلام بنی ارم میں تولد ہوئے۔ آپ کے وصال کے بعد میں اسی شاخ بنی ارم میں حضرت لوط علیہ السلام شہر ستان میں تولد ہوتے ہیں، پیغمبر بن کر کے مبعوث ہوتے ہیں۔ حضرت لوط علیہ السلام خداوند قدوس کی وحدانیت کا درس دیتے ہیں اور لوگوں کے لیے سمجھاتے ہیں کہ اے لوگوں، میں اللہ کا نبی ہوں، میں پیغمبر ہوں، مجھے خداوند قدوس کا پیغمبر سمجھو اور اس وحدہ لا شریک پر ایمان لاؤ، تو یہ تمہارے لیے، تمہارے حق میں اچھی بات ہے، ایمان قبول کرو۔ چنانچہ یہ قوم لوط اتنی شاطر، اتنی بے حیا، اتنی بے شرم تھی کہ خداوند قدوس نے قوم لوط کی طرح دنیا کے کسی خطے میں پیدا نہیں فرمائی۔ غرض لوط علیہ السلام نے اس قوم کے لیے خداوند قدوس کی وحدانیت کا درس دیا، مگر یہ قوم حضرت لوط علیہ السلام کے بتائے ہوئے راستے پر نہیں چلی، ان کے راستے پر گامزن نہیں ہوئی۔ حضرت لوط علیہ السلام اگین اینڈ اگین، بار بار اس قوم کے لیے سمجھاتے، مگر یہ قوم کہتی تھی ہم اپنا آبائی مذہب، اپنے آباء و اجداد کا مذہب وی کین ناٹ لیفٹ، نہیں چھوڑ سکتے۔ حضرت لوط علیہ السلام کے سمجھانے کے باوجود قوم راہ راست پر نہیں آئی۔ حضرت لوط علیہ السلام نے خداوند قدوس کی بارگاہ میں التجا کی، ریکویسٹ کی کہ بار الہ، اے اللہ جل شانہ، اس قوم کے لیے ہلاک فرما، اس قوم پر عذاب نازل کر۔ حضرت لوط علیہ السلام کی دعا مقبول ہوتی ہے۔ خداوند قدوس کی بارگاہ میں حضرت لوط علیہ السلام کی دعا گرانٹ ہوئی۔ خداوند قدوس نے اس قوم کے لیے عذاب نازل کرنے کی پلان بنایا۔ تو یہ قوم اس قدر شاطر اور اس قدر بے حیا اور بے شرم تھی کہ مرد مرد کے ساتھ، عورت عورت کے ساتھ جفت یعنی ملن
हम बिस्तरी किया करते थे। इस कदर बेशरम और बेहा कौम खुदावंद कुद्दूस ने दुनिया के किसी खत्ते में पैदा नहीं फरमाई। जब इनकी बेहाई और बेशर्मी हद तक पहुंच गई तो खुदावंद कुद्दूस इन पर अजाब नाजिल करने के लिए हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम और उनके साथ में 11 पैगम फरिश्तों को भेजता है। चुनाचे हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम 11 लड़कों की शक्ल में शहर सतान में आते हैं और लोगों से हजरत लूत अलैहिस्सलाम का पता मालूम करते हैं। चुनाचे शहर सतान में जब ये फरिश्ते बशक्ल लड़कों की पहुंचते हैं तो तमाम शहर इन पर आशिक हो जाता है, क्योंकि उनकी बदचलनी और बेहाई बेशर्मी इस कदर बढ़ गई थी कि इन फरिश्तों को इन लड़कों की सूरत में देखते ही तमाम शहर इनके पीछे पीछे घूमने लगता है। ये फरिश्ते हजरत लूत अलैहिस्सलाम के मकान का पता पूछ रहे थे। तमाम शहर इन लड़कों के पीछे पीछे हो लेता है और हर किसी की ख्वाहिश ये थी कि हम इन लड़कों के साथ अपना मतलब पूरा करें। गरज तमाम शहर इन फरिश्तों के पीछे जो कि बशक्ले लड़कों के थे, तमाम शहर इनके पीछे पीछे दौड़ पड़ता है। फरिश्ते हजरत हूद अलैहिस्सलाम का पता पूछते पूछते हूद अलैहिस्सलाम के घर पर पहुंच जाते हैं और आवाज देते हैं तो एक साहबजादी निकल करके आती हैं और कहती हैं कि हमारे वालिद लूत अलैहिस्सलाम इबादत में मशगूल हैं, वो पैगंबर हैं, उन्होंने इस कौम के लिए खुदावंद कुद्दूस की वहदानियत का दर्स दिया, लेकिन ये कौम बहुत ही शातिर, बेहद बेशरम, बेहद बेहया है। दे आर ऑल बास्टर्ड, दे आर ऑल इडियट, दे आर ऑल नॉनसेंस। ये लोग हजरत लूत अलैहिस्सलाम की बताई हुई तालीम के लिए नजरअंदाज करते रहे, कोई भी ईमान नहीं लाया। इस तरह से हजरत लूत अलैहिस्सलाम गोशा नशी हो गए हैं और इबादत इलाही में मशगूल हो गए हैं और रात दिन इस कौम के लिए हलाकत की दुआ फरमाते हैं। साहबजादी कहने लगी, मेरे वालिद लूत अलैहिस्सलाम इबादत में मशगूल हैं, जब ये इबादत से फारिग हो जाएंगे तो हम उनके लिए बताएंगे। चुनाचे हजरत लूत अलैहिस्सलाम जब इबादत से फारिग होते हैं तो साहबजादी उनसे जाकर के कहती हैं कि कुछ मेहमान दरवाजे पर खड़े हैं। हजरत लूत अलैहिस्सलाम आते हैं और उन लड़कों को देखते हैं तो आप बहुत ज्यादा खौफ होते हैं, बहुत ज्यादा आपके दिल में खौफ तारी होता है कि हजरत लूत अलैहिस्सलाम के मकान पर जिन शातिर मर्दों की वजह से उन्होंने गोशा नशी इख्तियार की थी, आज तमाम शहर उनके दरवाजे पर आ पहुंचा है और ये खूबसूरत लड़के हैं, ये बदफेली करते हैं और ये यहाँ तक आ गए हैं, इनसे कैसे निपटारा होगा। चुनाचे पब्लिक कहती है लूत अलैहिस्सलाम से, आए लूत, ये जो तुम्हारे यहाँ जो मेहमान आए हैं, जो मुसाफिर हैं, इनको हमारे हवाले कर दो, हमारी कस्टडी में दो, हम इनके साथ अपना मतलब पूरा करना चाहते हैं। हजरत लूत अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, ये मेरे मेहमान हैं, मेरे गेस्ट हैं, इनके सामने मेरी तौहीन मत करो, डोंट अबोज। आप मेरे बेइज्जती मत करो इन मुसाफिरों के, इन मेहमानों के सामने। अगर आपको कुछ चाहिए, अगर आप अपना यही मकसद पूरा करना चाहते हैं तो मेरे लड़कियां हैं, मैं उनसे आपका निकाह कर दूंगा, लेकिन मेहमानों के सामने मेरी बेइज्जती मत करो। पब्लिक कहती है, ऐ लूत, वी वांट योर्स डॉटर्स, मुझे आपकी लड़कियां नहीं चाहिए, हमें आपकी लड़कियों से कोई गरज नहीं, हमें तो इन लड़कों को हमारे हवाले कर दो। चुनाचे हजरत हूद अलैहिस्सलाम काफी पशुपेश में पड़ जाते हैं और इनसे काफी दरख्वास्त करते हैं, लेकिन पब्लिक
हत्तापाई पर उतारू हो जाती है। पब्लिक ने हजरत हूद अलैहिस्सलाम पर दस्त दराजी की। हजरत लूत अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि बारे इला, इस पब्लिक की बदतमीजी की वजह से, इनकी फेल की वजह से, इनकी बेहाई और बेशर्मी की वजह से मैंने समझाते समझाते इनके लिए गोशा नशीनी इख्तियार की है। अब ये मेरी बेइज्जती पर तुले हुए हैं। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम हजरत हूद अलैहिस्सलाम के लिए मकान के अंदर लेके जाते हैं और कहते हैं डोंट वरी, आप फिक्र मत करें, डोंट माइंड, हम फरिश्ते हैं, इन पर अल्लाह ताला का अजाब मुंतखब हो चुका है, लिहाजा आज आधी रात के लिए इन पर अजाब नाजिल होगा। हम फरिश्ते हैं, आज हम इन पर संगवारी करेंगे, पत्थरबाजी करेंगे। वी आर हियर, यू शुडंट वरी इन अबाउट इट, जब तक हम यहाँ हैं आपको फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं। चुनाचे हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम हजरत लूत अलैहिस्सलाम के लिए काफ़ी तसल्ली और तशफ़ी देते हैं। चुनाचे हजरत लूत अलैहिस्सलाम जब सेटिस्फाई हो जाते हैं ये फरिश्ते हैं और इन कौम पर अजाब नाजिल होगा, तो आप कुछ तसल्ली बख्श, आपके लिए दिल में कुछ अल्लाह ताला की तरफ से ख्याल आता है कि वाहदहुल्ला शरीक, तूने मेरी दुआ मकबूल फरमाई, तूने मेरी दुआ एक्सेप्ट कर ली। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम कहते हैं लूत अलैहिस्सलाम से, ऐ लूत अलैहिस्सलाम, आप पर जो ईमान लाए हैं या आपके जो घर वाले हैं उनके लिए अपने मकान में बुला लो। आज आधी रात के बाद इस पूरे शहर सतान पर अजाब नाजिल होगा, इन पर पत्थरों की बारिश होगी। चुनाचे हजरत लूत अलैहिस्सलाम जो उन पर ईमान लाए थे उनके लिए और उनके जो भी घर वाले थे उनके लिए अपने मकान पर बुला लेते हैं। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम उनके जो भी अनुयायी थे, जो भी उम्मती थे और जो घर वाले, उनके लिए परों पर बिठा करके शहर के बाहर एक पहाड़ था, उस पर सबके लिए पहुंचा देते हैं। आधी रात के बाद खुदाबंद कुद्दूस के हुक्म से हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम इस कौम पर संगबारी यानी पत्थरबाजी करते हैं। सुबह तक इन फरिश्तों ने पत्थरबाजी की, तमाम शहर सतान मिस्मार हो जाता है, कोई शख्स नहीं रहता है जीवित, कोई शख्स नहीं बचा, पूरा शहर जो है हलाक हो गया, पूरा शहर का नाम और निशान गायब हो गया। तो हजरत हूद अलैहिस्सलाम अपने तमाम फैमिली, अपने तमाम उम्मतियों को लेकर के जो कि रहते हैं, तो एक शहर था मदाइन, उस शहर के लिए प्लान कर जाते हैं अपने पूरे परिवार, अपनी पूरी फैमिली के साथ, जो भी आपके उम्मती थे चंद, उन्हें लेकर के शहर सतान बर्बाद हो जाता है। शहर मदान के लिए आप प्लान कर जाते हैं, हिजरत फरमा जाते हैं। ये जो साहबजादी हजरत लूत अलैहिस्सलाम की जो थी, उसके बाद में हजरत लूत अलैहिस्सलाम इन साहबजादी का निकाह फरमाते हैं। हाज़िरीन महफिल, नाज़रीन हजरात, डियर ऑडियंस, मैं आपसे एक सवाल करता हूँ। सवाल यह है कि हजरत लूत अलैहिस्सलाम की साहबजादी जो कि मकान से निकल करके आई थी, इनका नाम फुकिया बिनते लूत अलैहिस्सलाम था। मैं आपसे एक सवाल करता हूँ कि वो कौन ऐसी दुख्तर हैं, कौन ऐसी साहबजादी हैं जिनके वालिद पैगंबर, जिनके शौहर पैगंबर, जिनके जेठ पैगंबर, जिनके ससुर पैगंबर, जिनके बेटे पैगंबर, जिनके पोते पैगंबर। तो हजरत आइए, हजरत फुकिया बिनते लूत अलैहिस्सलाम का निकाह हजरत इसाक अलैहिस्सलाम से होता है, जो कि वालिद पैगंबर हैं फुकिया के। इनके शौहर हजरत इसाक अलैहिस्सलाम पैगंबर हैं, इनके जेठ हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम पैगंबर हैं, इनके ससुर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम पैगंबर हैं, इनके बेटे हजरत याकूब अलैहिस्सलाम पैगंबर हैं, इनके पोते हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम पैगंबर हैं। तो यही फुकिया बिनते लूत अलैहिस्सलाम हैं जिनके रिश्तेदारी में 6 पैगंबर गुजरे हैं। लूत अलैहिस्सलाम जो है शहर मदाइन के लिए प्लान कर जाते हैं, हिजरत फरमा जाते हैं और वहां जाके दीन की तबलीग करते हैं। कुछ अरसा के बाद आप जो है हलाक खुदाबंद कुद्दूस के हुक्म से विसाल फरमा जाते हैं, उस माबूद हकीकी से जा मिलते हैं। इसके बाद में
काफी सालों के बाद में इसी शहर मदान में हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम पैगंबर बनकर मबूस होते हैं। इनका वाकया, इनका किस्सा इंशाअल्लाह हम अगले एपिसोड में आपकी खिदमत में हाजिर करेंगे। मेरा कहने का मकसद ये है, ये शजरा नसब नामा हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर के आज तक उर्दू, हिंदी, इंग्लिश में आपकी खिदमत में हाजिर है। इस शजरा नसब नामे की कड़ी ये 5वीं कड़ी है। अगले एपिसोड में इंशाअल्लाह हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए बाय, सी यू, टिल देन, खुदा हाफिज, वाखिरुद्दावा अनिल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, वमा अलैना इल्लल बला। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।